مولانا محمد علی جوہر مسلمانان ہند کی ان چند نمائندہ شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اور تمام تر توانائیاں غلام ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف کیں، اور جب سامراج کو مائل کرنے میں کامیابی نہ ہوئی تو مرنے پر غلام ملک میں دفن نہ کیے جانے کی وصیت کر دی۔ تحریک آزادی میں مولانا محمد علی جوہر کے 1911 میں کلکتہ سے جاری کردہ ہفت روزہ انگریزی اخبار کامریڈ اور 1913 میں دہلی سے اشاعت شروع کرنے والے اردو روزنامہ ہمدرد کو مسلمانان ہند کی آواز اور اپنے ایڈیٹر کی بے لاگ صحافت کا آئینہ دار قرار دیا جاتا ہے، جس کی پاداش میں انہیں نہ صرف اخبارات کی بندش ساتھ ہی قید و بند کی صورتیں بھی جھیلنا پڑیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا 55 برس کی عمر میں 4 جنوری 1931 کو لندن میں انتقال ہوا اور وصیت کے مطابق انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، میں آپ حضرات کے ساتھ ایک بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ہسٹری پڑھی ہوگی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد شوکت علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی تھی، خلافت مومنٹ اس کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ بھی مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے اندر ہے۔ مسجد اقصیٰ دیکھیں، قبۃ الصخرہ ہے سامنے، قبۃ الصخرہ، اور پھر ہم قبۃ الصخرہ سے بالکل ایسے آئیں تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ گیٹ آف مرچنٹ ہے، باب القطانی گیٹ آف مرچنٹ، بالکل آپ رائٹ سائڈ پہ جب آتے ہیں، جب گیٹ آف مرچنٹ باب القطانی سے بالکل آپ آئیں، ساتھ ہی یہاں پر یہ مولانا محمد علی جوہر ذریع المجاہد العظیم مولانا محمد الہندی، یہاں پر ان کی تدفین ہوئی بھی ہے۔ توفی فی لندن کے اندر انتقال ہوا، اور نصف شعبان 15 شعبان کو، اور القدس کے اندر جمعے کے دن 5 رمضان کو ان کی جو ہے وہ تدفین ہوئی تھی۔ تو سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ مولانا محمد علی جوہر، ان کی قبر مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے مولانا محمد علی جوہر بڑی علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے، اور بڑی ان کی ایک جہد مسلسل ہے، اور 1930 کے اندر یہ جب گول میز کانفرنس تھی لندن کے اندر، ان کی ایجوکیشن بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی ہوئی، پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے بھی رہے، پھر انہوں نے ایک جامعہ ملیہ ابھی قائم کی دہلی کے اندر، اور پھر جب 1930 کے اندر یہ گول میز کانفرنس کے لیے تشریف لے گئے ہیں لندن، تو بہت ضعیف تھے، اور وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو جنوری 1930-31 میں پھر انتقال وہاں ہوا، پھر ان کی جو میت ہے وہ مصر سے ہوتے ہوئی اس وقت کی جو رابطہ عالم اسلامی تھی، اور جو عرب حکمران تھے، جو مومنٹ کے جو لوگ تھے، جو تحریک کے، انہوں نے یہاں لا کر ان کا جنازہ یہاں پڑھا گیا، اور یہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے آخری آرام گاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے ساتھ میں سرفراز اعظمی صاحب ہیں، ہندوستان اردو اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور خلافت ہاؤس کے اس وقت کے صدر بھی ہوئی ہے، ادھیکش بھی ہے۔ جانتے انہیں سے خلافت ہاؤس کے بارے میں، اور مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آج اتنے سال ہو گئے، آزادی کے 74 سال ہو گئے، خاص کر کے یہ شکایت رہی ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے جو مجاہد آزادی ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، چاہے وہ اخباروں سے لے کر کے
या दरसी किताबें हैं, जो सिलेबस है उसके अंदर आप क्या मतलब इसके अंदर मानते हैं कि इस तरह की बातें जो है यहाँ पे हुई है, या खाली ऐसा लोगों का मानना है? ये बात तो तय है कि हमारे यहाँ तारीख जो है वो एक बिल्कुल तासुब की निगाह से तैयार की जाती है, और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में और जंग आज़ादी से पहले जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है उसका खुले दिल से जो है इस्तेमाल नहीं किया था, उसका एहतराम नहीं किया जाता था। शायद तो हमारी एक ज़माने से है, और अगर नए दौर के नौजवानों से पूछे कि भाई कुछ ऐसे नाम गिनवाइए जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मेरे ख्याल में मौलाना आज़ाद के आज इसको दूसरा नाम मालूम ही नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये भी मालूम होगा कि मौलाना आज़ाद के अलावा हज़ारों मुसलमान ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी है, सजाए मौत उनको दी गई है, उन्होंने जान पर खेल कर दी है हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया, उनका कहीं जिक्र नहीं होता। और ये शिकायत करने के बाद जो अपना काम है वो ये है कि ठीक है दूसरे तो आपका एतराफ़ नहीं करते, लेकिन आप तो अपने असलाफ को याद रखिए। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि आप किन लोगों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोगों को मुसलमानों को अपने तौर पर भी तो अपनी तारीख़ मुरतब करनी चाहिए। क्या ज़रूरी है कि दूसरे भी लोग जो है आपकी तारीख़ मुरतब करें? हमें जब अपनी तारीख़ मुरतब करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तब हम लोग जो है वो ऐसे नए नामों को जो है लोगों से रुशनास कराएंगे जो आमतौर पर अंग्रेज़ी की या दूसरी किताबों में नहीं है। अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की हम क्योंकि आप भी साहबी हैं और मुंबई का सबसे पुराना अखबार है तो जितने भी पुराने हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, मुजाहिद आज़ादी है, उनकी अगर हम देखें शुरुआत जो है वो अखबारों से भी है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में अगर बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, एक छोटी सी मतलब जानकारी लोगों की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सियासी कैरियर जो है वो जुड़ता है खिलाफत की तहरीक से, और ये लोग जो थे ये पेशवा थे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में, जो जिसका दौर जो है 1912 के बाद से शुरू होता है। और ये जो तहरीक थी खिलाफत की, ये तहरीक थी असल में खिलाफत उस्मानिया को टूटने से बचाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है कोशिश थी। पहली जंग अज़ीम में जो है वो बरतानिया और उसके हलीफ जो थे वो लोग जो थे वो तुर्की और उसके हलीफ जो थे उनके खिलाफ जो है जंग लड़ रहे थे, और उनकी सारी कोशिश ये थी कि तुर्की जो है जो उसको एक सुपर पावर था उसको किसी न किसी तरह जो है उसके टुकड़े कर दिए जाए, और उसके बाद जो है फिर छोटे छोटे ममालिक से जो है अपने तौर पर निपटाए जाए। तो जब तुर्की को हज़ीमत उठानी पड़ी पहली जंग में, वर्ल्ड वॉर 1 में, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तशवीश हुई कि तुर्की के ज़ेर असर हमारा खाना काबा, मक्का मुअज़्ज़मा, मस्जिद नबवी, ये सब जो थे ये तुर्की के ज़ेर असर थे। ये तुर्की का स्टेट था हिजाज, उसका हिस्सा थे। तो जब तुर्की का जवाल आया और जब ये खबरें हिंदुस्तान पहुँचने लगी कि अब जो है इसका खात्मा हो जाएगा खिलाफत उस्मानिया का, तो मुसलमानों में ये तशवीश पैदा हुई कि हमारे मुक़द्दस जो मकामात हैं उनका मुस्तक़बिल क्या होगा, वो भी फिर बरतानिया के ज़ेर असर चले जाएंगे। यानी लोग ये समझे कि बरतानिया का फातेह है तो फातेह जो है वो अपनी तमाम मफ्तू की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता है, तो उस हिसाब से जो है खाने काबा, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और जगह हमारी जो मुक़द्दस मकामात हैं तो तमाम के तमाम जो हैं वो अंग्रेज़ों के ज़ेर असर चले गए। अंग्रेज़ उस वक्त हिंदुस्तान में हुक्मरान थे, तो मुसलमानों ने
ये स्ट्रेटजी इख्तियार की कि अंग्रेज़ों पर हिंदुस्तान में दबाव डाला जाए कि वो खिलाफत उस्मानिया को जो है टुकड़े न करें और हमारे जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनको जो है मुसलमानों के ही इख्तियार में जो है इख्तियारी रहने दिए गए। तो इस तहरीक को जो है अली बरादरान ने जो है जो अपनी की वजह से और जो उस वक्त के हालात थे उसमें जो है जो बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती थी उसका अमल करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए रवाना किया और उसी का नतीजा था कि गांधी जी जो कि उस वक्त नए नए सियासत में आए थे हिंदुस्तान की सियासत में और जो बड़े पैमाने पे मुतारिफ भी नहीं थे पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों की जज्बात को महसूस किया और उन्होंने फिर एक ऐसी तहरीक शुरू की, खिलाफत तहरीक और उसकी हिमायत शुरू की जिसकी वजह से ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान जो थे वो पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है वो कई मराहत देने पर और उनको जो है कई मुकामों पर मजबूर किया। गांधी जी जो आज कहा जाता है कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी, सभी जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे जैसा कि आपने बताया कि मुसलमानों के लिए मौलाना मोहम्मद अली जोहर, शौकत अली जोहर इतना अहम किरदार था आज़ादी के लिए। यहाँ तक कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना और वहाँ पे कह देना कि अगर आज़ादी नहीं मिली तो मैं वो गुलाम मुल्क में जो है मरना पसंद भी नहीं करूँगा। और उनका इंतकाल वहीं पे हुआ और वहाँ लंदन में इंतकाल हुआ, जेरूसलम में जो है मस्जिद अक़सा में जो है उनकी तदफीन हुई। हिंदुस्तान के अंदर जैसा भारत रत्न अभी हाल फिलहाल में जो है 1-2 साल पहले जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया गया, काफ़ी लेट हुआ। ऐसे मुश्किल उठाए गए आज़ादी को भारत रत्न क्यों मिले? ये तो सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो लोग भारत रत्न देने के फैसले करते हैं और जाहिर बात है कि इसमें बड़ा अमल दखल जो है लोकल पॉलिटिक्स का भी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले हैं वो हिंदुस्तान की हर बड़ी सियासी जमात में मौजूद है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी है और दीगर मकामात पे भी है। लेकिन तमाम लोगों की एक तरह का कोशिश की जिसको जो है उसमें जो कुछ नहीं किया और भारत रत्न जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी दिया गया, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कि हम लोग अपना हक मनवाने और अपने हक को जो है एक सियासी अंदाज में उसको जो है आगे बढ़ाने और उस मुतालबे को जो है तकमील तक पहुँचाने के हुनर से भी नावाकिफ हैं। हम लोग बहुत देर से जाते हैं, बहुत कम इन मामला में दिलचस्पी लेते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी गैर मौजूदगी का जो है सियासी मंजर से हमारी गैर मौजूदगी का फायदा तो अपने काम करवा देते हैं। हम जो है आज़ादी के अभी 2 साल है, 2022 में 75 साल है। खिलाफत कमेटी के आप सदर हैं, क्या आप इस तरह की मांग करेंगे सरकार? यकीनन हमने 100 साल तो पूरे कर दिए हिंदुस्तान की आज़ादी को। तो अभी 1947 में, लेकिन ये तहरीक तो 1917 से जारी है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने जो है 100 साल अपनी तहरीक को पूरे कर लिए, मुकम्मल कर लिए और खिलाफत हाउस जो है वो मरकज़ रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासी तहरीकों का। तो सूरत को ये देखा जाए तो हम लोग जो है इसका मुतालबा करने में हाथ बजाने में कि मौलाना मोहम्मद जो भारत रत्न अवार्ड से सरफराज किए गए। हम लोग को उससे पहले जो है मौलाना मोहम्मद जोहर के ताल्लुक से जो है अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों में जो है बेदारी पैदा करना चाहते हैं लोगों को जो है मौलाना मोहम्मद जोहर को
अहमियत से जो है वाक़ुफ़ करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने पिछले साल जो है कई स्कूलों के दरमियान मुकाबले करवाना, तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले वगैरह वगैरह, और इसके अलावा हम लोगों ने किताब की इफ़्ताह का भी एहतमाम किया जो मौलाना मोहम्मद तमाम फैसलों को जो है वाज़ेह कर दिए। तो हम पहले अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं मौलाना मोहम्मद अहमियत है क्या चीज़ है और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे जो है पहले लोगों की खुशनास कराना चाहते हैं। और जब हालात को साजगार होंगे और हमें लगेगा कि हमारी बात सुनी जाती है तो इस चीज़ का मुतालबा भी करेंगे तो मौलाना मोहम्मद अब अभी जब हालात साजगार हो गए, मतलब हुकूमत से ताल्लुक़ है कि ये हुकूमत जो है शायद हमारी नहीं माने, लेकिन अभी जो रियासती हम अभी से ये नहीं कह सकते कि हुकूमत नहीं मानेगी, हो सकता है हुकूमत मान भी है, लेकिन अभी वहाँ भी किसी को ये चीज़ नहीं मालूम है कि मौलाना मोहम्मद जो है इस खिताब के लिए हकदार है। पहले हमारा काम जो है वो रसाई हासिल करना है और हमारा काम जो है मौलाना मोहम्मद की शख्सियत को जो है तमाम लोगों से शनाख्त कराना, ये पहला काम है। और उसके बाद जो है हम लोगों को भारत रत्न और दूसरे जो किताबात दे सकते हैं उसके लिए जो है हमें आवाज़ उठानी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर उर्दू एकेडमी है जिसके ज़रिए सालाना जो है सहाफ़त के लिए अवार्ड दिया जाता है। आप भी शायद उस कमेटी के अंदर मेंबर थे, मुझे सही से नहीं मालूम है लेकिन मेंबर थे आप उस कमेटी में, आप मेंबर। तो उनको भी इनके नाम से जो है कोई अवार्ड, जैसा कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है जिस तरह से सहाफ़ती अवार्ड दिए जाते हैं, तो एक अवार्ड इनके नाम से भी मौलाना मोहम्मद अली गौर के नाम से इनको देना चाहिए। उनके नाम से कुछ अवार्ड मंजूर है मौलाना मोहम्मद अली गौहर के नाम से, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली गौहर बहुत बुलंद पाया साहब अंग्रेज़ी के लिए और उर्दू के लिए, कि अंग्रेज़ी भी उनको शानदार उनकी और उनकी तहरीरें जो थी वो इस तरह दिलचस्प थी और इस कदर पुरमौज होती थी कि अंग्रेज़ अफसरान भी जो है जो अखबार कॉमरेड था उसको पढ़वाते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि हिंदुस्तान की नफ्स क्या होती है। यहाँ तक कि लंदन के अंदर जो अखबार जो है वहाँ पे शाया होने वाला उसका जवाब जो है मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने जो जवाब दिया और उसके बाद में जो है इनके दोनों अखबारों को जो है बंद कर दिया गया अंग्रेज़ी को। अंग्रेज़ को अपनी तनकीद को बता कई मरतबा हमारे अखबार जो है वो बंद किए गए, उनकी जमानतें जब्त हुई, तो बार बार जो है प्रेस ऑफिस किए गए और लोगों को जो है नाम बदल कर जो है अपने अखबार जारी करने क्योंकि किसी अखबार का टाइटल अभी तक जो है RNI में जिंदा है, ऐसा मैंने सुना, मुझे सही से मालूमात नहीं है। RNI में कहाँ से आएगा, मतलब कोई टाइटल अभी तक जो है हमदर्द हमदर्द नाम था, हमदर्द के बाद में जो है वो हमदर्द लेबोरेटरी है जो अफसर वगैरह बनाते हैं, उनका भी एक न्यूज़ लेटर टाइप का अखबार था वो भी हमदर्द चलाता था। मैं समझता हूँ कि वो भी जो शायद नहीं चलते चलते अगर हम बात करें मौलाना मोहम्मद अली गौहर की बात होगी, सहाफ़ी है और आपका अखबार जो है सबसे पुराना है, और अखबार की बात ना हो आज के जो हालात हैं उर्दू अखबार या उर्दू अखबार को ज़िंदा रखना, आप जो अखबार जो है 100 साल से ज़्यादा हो गया चला रहे आज के दौर में ज़िंदा रखना कितना मुश्किल काम है। देखिए हम तो इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि खुदावंद करीम जो है मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी पैदा करता है और हम लोग जहाँ कुछ चीज़ों के लिए खुदावंद करीम के शुक्रगुज़ार हैं वहाँ हमारा ये मसला भी है कि अब जो है हालात बदलते जा रहे हैं और अब जो है लोग नए दौर के और नए तकाज़ों में जो है वो मुतालबा करते हैं, नए तकाज़े करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लोग साफ
से आपसे हुई वो था कंप्यूटर का आना। और जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ने जो है तरक्की की, वैसे वैसे उर्दू अखबार की इशाअत का जो है सिलसिला जो है फैलता गया। और इन अखबार को शाया करना जो है वो निस्बतन आसान काम हो गया। एक ज़माना था हाथ से किताबें लिखी थी और उसके बाद जो है वो उनको ऑफिस में पूरे अखबार छपते थे। बड़ा टीडियस इसको हम कहते हैं, बहुत तकलीफ से प्रोसेस हुआ करता था अखबार को शायद। लेकिन अब जो है सब जो है वो कंप्यूटर से दस्तियाब है, ईमेल की सहूलत है, खबरों की तफसील आसान हो गई है। अब तो लोग मोबाइल पर ही जो है अपना सारा काम कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, तस्वीरें भेज देते हैं, मज़ामीन आ जाते हैं, मरासलात आ जाते हैं। तो जितना आसान अब है अखबार को निकालना, जितना पहले किसी दौर में नहीं, लेकिन जो पढ़ने से लेकिन जो सबसे बड़ा मसला उर्दू के साथ है वो ये है कि उर्दू अखबार को जो है गैर सरकारी और सरकारी इख्तियारात दोनों ही मुहावरों पर जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना है। क्योंकि वो ये रहा है कि मुसलमानों के पास कोई बड़ी सनत इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिससे जिसकी तरफ हम देख कर कह सकें हिफाजत करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास। और जब इंडस्ट्री नहीं है तो फिर आपके पास इश्तहारात नहीं होंगे तो आपके अखबार लाभर हो जाएंगे, खसारा जो है वो बढ़ता चला जाएगा और अखबार निकालना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जो खुशाइन बात है, जो मुस्तक़बिल का जो नक्शा हम रहने रखते हैं, ये है कि दुनिया की दीगर ज़बानों की तरह उर्दू अखबार जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है दस्तियाब हैं और इंटरनेट और व्हाट्सएप और मेल के ज़रिए जो है हमारे अखबार कहीं ज़्यादा फैल सकते हैं जितना कि वो पहले पढ़े जाते थे। हम लोग को इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे अखबार जब तक प्रिंट एडिशन हमारा रहा उस वक्त हम लोग बम्बई के आगे उसके मदाफात जो उससे और कहीं दूर चले गए तो भिवंडी या मालेगाँव दुलिया यही दस्तियाब हो गए। लेकिन आज हमारा अखबार जो है लंदन में भी पढ़ा जा रहा है, अमेरिका में भी पढ़ा जा रहा है, सऊदी अरब में भी पढ़ा जा रहा है, बांग्लादेश तक भी, नेपाल तक भी पढ़ा जा रहा है। तो अखबार पढ़ने वालों की तादाद में तो इजाफा हुआ है और अखबार का फैलाव जो है वो बढ़ा है। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कि तकलीफ के साथ राहत भी होती है। यहाँ वो तकलीफ है कि वहाँ प्रिंट एडिशन जो है वो उसको जिंदा रखना जो है बहुत से अखबार के लिए मुश्किल हो गए। वहाँ उसका इंटरनेट एडिशन जो होता है सारी दुनिया में गर्दिश कर सकता है। ये थे मेरे साथ में सरफराज आजमी साहब, उर्दू हिंदुस्तान अखबार के एडिटर, सीनियर सहाफ़ी। हमने मतलब उंगली पकड़ के चलना सीखना जिससे तो हमने सीखा है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेकर के जो अखबारों की शुरुआत हुई थी जंग आज़ादी के वक्त, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुजाहिद आज़ादी थे आज जिनको हम जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके पंडित नेहरू से लेके महात्मा गांधी से लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेके, ये सब जो है पत्रकारों से उनकी शुरुआत हुई थी, सहाफ़त से उनकी शुरुआत हुई थी आज़ादी की लड़ाई। और आज जो हमें आज़ादी मिली, जेलों के अंदर बंद होना और काला पानी की सज़ा ये करना, आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। जिस तरह से आज जो है हम तिरंगा लहराते हैं और सलाम करके जो है खुशी मनाते हैं, काफ़ी तकलीफ दे था, एक लंबा सफ़र था, सालों का सफ़र था। और जिस तरह से सरफराज आजमी साहब ने कहा, तो ये भी आज के मुजाहिद है जो अखबार चला रहे हैं, उर्दू पे ख़ास करके अखबार। और उर्दू का अखबार चलाना जो है एक मुश्किल काम है, क्योंकि कमर्शियल ऐड नहीं है उसके लिए। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आज हमारा जो अखबार है, इंटरनेट और दूसरा डिजिटल जो दौर आ गया, आज लंदन, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, किसी भी दुनिया के मुल्क में हम देख सकते हैं एडिशन। लेकिन उसको जो चलाने के लिए जो पूरा स्टाफ होता है, जो उसके लिए वसाइल लगते हैं, एक लंबा खर्च होता है एक डेली अखबार चलाने के लिए। और जिस तरह से चला रहे आज वो हिम्मत और हौसले की बात है। 100 साल पुराना अखबार है और आज तक जो है बिना रुके हुए अखबार शाया हो रहा है
अखबार छप रहा और हमारे बीच में आ रहा। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफीक शेख, मुंबई से।